ahead of Prime Minister Narendra Modi's visit to Ayodhya. Ayodhya is all decked up with flowers, lights and sculptures. Preparations are underway in full swing. Folk artists are performing in the streets of Ayodhya. Excitement around PM Modi's visit, as you just saw, to inaugurate the Maharishi Valmiki International Airport and Ayodhya Dham Junction is bubbling. The railway station airport is beautifully decorated. Meanwhile, security is heightened around the public meeting venue and across Ayodhya. Large posters bearing images of the upcoming Ram temple and the new airport and a message that hails Ayodhya as a city of Maryada, Dharam and Sanskriti has been put up in the temple town in Uttar Pradesh. So this is, of course, a lot is happening on ground. Of course, viewers, PM Modi is also in fact slated to inaugurate the several projects with a total worth of rupees 15,000 crores for Ayodhya. So, of course, a lot is happening on ground. Of course, we are also being given to understand that Prime Minister Narendra Modi will arrive 1 hour earlier. This is the latest that we are tracking for you. He is slated to arrive in Ayodhya at 9:50 a.m. following which a lot is going to take place. There are projects that he's going to inaugurate, which includes he's going to inaugurate the airport, the revamped railway station, highways, the doubling of a railway line. Additionally, 4 major roads are also set to be inaugurated as a part of this initiative. So, of course, a lot is slated to take place today. We are being given to understand that PM Modi will arrive at the airport at around 9:50 a.m. And of course, my colleague Manohar was just showing us the situation on ground. Of course, children are excited. There's a lot of excitement on ground and a lot is slated to take place today. Meanwhile, my colleagues are in Ayodhya to give you the minute-to-minute update of the grand ceremony and has in fact filed some ground reports showing the excitement of people of Ayodhya and the preparations that are underway. Let's in fact take a look. राम भक्तों के लिए अब वो घड़ी आ गई है जब राम भक्त राम जन्मभूमि से राम ससुराल तक अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ कम समय में सफर कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमृत भारत ट्रेन की, जो देश की पहली पुष्पुल नॉन एसी ट्रेन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। हरी झंडी अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से दिखाएंगे और ये अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इसे किस तरह से सजाया संवारा गया है। ये आप देखिए, यहाँ पर 2 लोको लगाया गया है और इसमें ट्रेन ड्राइवर के साथ साथ पायलट और ट्रेन मैनेजर होंगे, 2 होंगे जो इसको ले जाएंगे। और इसकी सुविधाएं देखिए जो पुशपुल टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, क्योंकि एक तरफ से ट्रेन पुश करेगी, दूसरे साइड से जो लोको मैनेजर होगा, जो पायलट मैनेजर होगा, वो आगे की ओर खींचेगा। कहा जा रहा है कि इस ट्रेन का एक्सेलरेशन बेहतर होने की वजह से ये रुकेगी नहीं, ये तेजी से आगे बढ़ती चली जाएगी। तो देखिए, उद्घाटन से पहले ही अमृत भारत ट्रेन जो अयोध्या धाम जंक्शन से दरभंगा तक जाएगी, मतलब सीतामढ़ी होते हुए ये क्रॉस करेगी। इसकी गाड़ी संख्या आप देखेंगे 05558 है। तो ये कुल जो ट्रेन है ये 22 कोच की ट्रेन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जाएंगे और ये दिव्यांग जनों के लिए बनाए गए हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। अब हम सफर करने जा रहे हैं देश की पहली पुष्पुल अमृत भारत ट्रेन, जो अमृत काल की पहली ट्रेन है और ये हम अब सवार हो चुके हैं स्लीपर क्लास में। अब तक आपने जो स्लीपर क्लास देखा जिसमें लोग सफर करते हैं, उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि ये अमृत काल की स्लीपर क्लास है। लोग वंदे भारत में चेयर कार में सफर करते हैं, लेकिन उसमें आप सिर्फ बैठ करके जा सकते हैं। पॉकेट खर्च ज़्यादा होता है, लेकिन जो कामगार होते हैं, मजदूर होते हैं या जो निम्न आय वर्ग के लोग होते हैं, वो उस पर सफ़र नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में इस ट्रेन को बनाया गया है, वंदे भारत के तर्ज पे बनाया गया है और ये स्लीपर क्लास है, क्योंकि 22 कोच की इस अमृत ट्रेन में, अमृत भारत ट्रेन में 12 स्लीपर क्लास के कोचेज हैं और बाकी जो कोचेज हैं उनमें से 8 कोचेज वो जनरल क्लास के हैं, एक
दिव्यांगजनों के लिए है और उनके लिए भी खास व्यवस्था है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्लीपर क्लास में सेफ्टी को लेकर के आप देखिए कोच के आगे और पीछे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि हर एक पैसेंजर पे ध्यान रखा जा सके। और जो एंट्री गेट है, एंट्री गेट पे आप देखेंगे तीन कैमरे, 1 2 3 कैमरे हाई डेफिनेशन वाले लगाए गए हैं ताकि कोई भी असामाजिक तत्व या किसी तरह के कोई उस तरह की घटना को अंजाम ना दे सके। कैमरा पर्सन दिनेश ठाकुर के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, अयोध्या धाम। रामचरितमानस की एक चौपाई है, प्रविशि कीजे नगर सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर काजा, जिसका मतलब है कि श्री रघुनाथ की नगरी में प्रवेश करके उनको अपने हृदय में रखिए और कामकाज कीजिए। तो इंडिया न्यूज़ भी ग्राउंड जीरो से अपना कामकाज शुरू कर गया है। राम लला की नगरी सज धज करके तैयार है, 22 जनवरी का इंतजार है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्यावासियों को, राम भक्तों को, देशवासियों को 11,100 करोड़ रुपए का सौगात देने जा रहे हैं। जैसा कि अब आप देख रहे हैं, हम अभी मौजूद हैं रामपथ पर। ये कहा जाता है प्रवेश द्वार है, यहाँ से चौराहा है, आप एयरपोर्ट की ओर जा सकते हैं और साथ ही साथ जो रामलला का मंदिर है यहाँ से कुछ ही फासले पे वो मंदिर है। तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं, जहां आप देखिए कि एक एक जो आकृतियां हैं वो भगवान राम को, रामायण की जो घटनाएं हैं उनको बतलाता है, उनका जिक्र किया गया है, क्योंकि ये राम की नगरी है, अयोध्या है, रघुकुल की नगरी है, प्रतापी राजाओं की नगरी है और इस नगर की छटा अब पूरी बदली है। यहाँ के फिजा में राम राम, सीताराम, हनुमान, इन सब का जयकारे लगने शुरू हो गए हैं। और हम अभी आपको दिखाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 पथ का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। उनमें से एक पथ है रामपथ, जहां हम मौजूद हैं। ये प्रवेश द्वार कहलाता है और यहाँ की छटा आप देखिए, आप देखते ही बनेगा जब आप यहाँ आएंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, सड़क के दोनों साइड आप देखेंगे तो ये आप देखिए, ये फूल मालाओं से अलग अलग भगवान राम की तस्वीर उकेरी गई है, बजरंगबली की तस्वीर है, हनुमान की अलग अलग मुद्राएं यहाँ दिखेगी। इसके अलावा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जो गुलदस्ते से, फूल मालाओं से जो सजावट की गई है वो काफ़ी सुंदर है। यहाँ की फिजा पूरी तरह से राममय में तब्दील हो गई है। हर जगह पताके फहराए जा रहे हैं। ये आप देखिए, गाड़ी के ऊपर जो वो ध्वज लगा हुआ है भगवान राम का, उनके रामलला के मंदिर उसमें भी हैं और वो पूरे अयोध्या में इस पताके से स्वागत भी किया जा रहा है। कहा जाता है जब भगवान राम वापस रावण को जीत करके, लंका को जीत करके आए थे तो इसी तरह से पताके बंदरवार फहराए गए थे। तो ये रामपथ है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और ये मेन रोड कहलाता है क्योंकि ये सीधे सड़क जो है वीणा चौक तक जाता है, जो लता मंगेशकर चौक कहलाता है, वहाँ तक ये सड़क जाती है और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो 30 दिसंबर को शुरू होगा और ये रोड शो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, उसी बीच में जो श्री राम जन्मभूमि पथ है, जहां मुख्य मंदिर है, जहां रामलला का मंदिर है, जहां रामलला विराजमान होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, वहां से ये रोड शो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये रामपथ से इंडिया न्यूज़ एक एक करके ग्राउंड रियलिटी आपको बता रहा है कि आखिरकार अयोध्या में कितना बदलाव आया है, किस तरह से तैयारी की गई है और जो रामपथ है, भक्ति पथ है और साथ ही साथ श्री राम जन्मभूमि पथ है, ये सब पथ पूरी तरह से तैयार हो गया है और रंग रोगन का काम भी चल रहा है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.